5। ओके, 50th कारिका तुष्टि। तो पहले की जो 4 तुष्टियां अपन ने पढ़ ली थी उसको छोड़ के एक्सटर्नल फॉर्म्स से शुरू करते हैं, विच इज ऑन पेज 102 इन माय बुक. हम्म Last 2 lines on that हम्म page हम्म is about the external forms of contentment are being described. Sumati, are you with us? पेज नंबर 102. 102 है मेरी पुरानी वाली बुक है. आई डोंट थिंक पेज हैज चेंज्ड. नहीं, सब एक ही है, वो है ना? हमारे में भी वही है। सेम है ना? ठीक है. तो मैं पढ़ू कि सुमति हाँ, तू तू पढ़ कर. रही है? नहीं, तू स्टार्ट करा. तू शुरू कर, बाद में सुमति कैन पिक अप. हाँ. The external forms of contentment are being described. They are 5 from the abstinences of 5 objects of senses. These 5 belong to those who have vairagya but are nevertheless contained in considering the non-spirit, viz. Nature, will, intelligence, I principle, and the rest as the spirit. The feeling of satisfaction arising from this is called external because lacking the knowledge of the spirit. They undertake efforts based on the knowledge of the non-spirit. These forms of contentment appear only when there is vairagya. Therefore, these forms of vairagya also are considered fivefold as the cause of vairagya are 5. Therefore, these contentments are also 5. Abstinences from the objects of the senses is vairagya, and vairagya is the absence of attachment. These 5 abstinences arise from the perception of defects in the process of sense enjoyments involving, as it does, the trouble of earning, saving, wasting, pleasure, and violence involved in killing, etc. The means of earning wealth are by service under another act, and they cause pain to the servants, as mentioned in verse below. Which wise one would ever get into the service of another when one thinks of the pain caused by the insults suffered at the hands of the terrible wardness, armed with stick and employed by a hot, क्या लिखा है ये? haughty and wicked master. Similar is the case with other means of acquiring wealth also. The contentment arise from abstinences from the objects of the senses because they cause pain is called para. Again, the protection of the wealth thus acquired from being destroyed by the agents of the king, thieves, fire, kings, thieves, thieves, fire, and floods, etc., involves great pain and misery. The contentment that arise from the abstinences from the objects of senses due to such consideration is the second variety called Suparam. Again, the constant thought that the wealth acquired with great pain wastes away when enjoyed leads to the abstinency from objects of the senses. The contentment arise from such feelings is called the third kind of contentment called paravara. वो जो ए के ऊपर लाइन है ना, हाँ, that makes a sound as a.
अच्छा पा पारा रा वा र। पारा अच्छा अच्छा by becoming addicted to the enjoyments of the senses objects such as the sound and the rest, the craving for them also increase. They make a लेक्चरस। lecherous person miserable if objects of enjoyment are not available. The contentment that arises from the abstinences of the object of the sense from such thoughts is the fourth type of movement, Anutama Bha. अनुतम Anutama अंब, अनुतम अंबा। Amba. The contentment that comes from the abstinency of sense object arising from the perception of defects of violence, etc., caused by such thoughts as it is not possible to have the enjoyment of the object of the senses without the process of killing animals, etc., is the fifth kind of contentment called Uttama मांब, Uttamam. Thus, अनुतम अंब और उत्तम अंब। thus the four kinds of internal contentment along with the five varieties of external make the total number of contentment 9. एक भी समझ में आया? इतना तो समझ में आया, इट हैज गॉट टू डू विथ वेल्थ। Yes. वेल्थ बार बार आ रहा है। Hmm. ऐसा करते हैं, इसको फिर से पढ़ते हैं एंड एट प्लेसेस वी विल पॉज, रिफ्लेक्ट एंड देन मूव ऑन। ठीक है? ठीक. सुमति, यू स्टार्ट रीडिंग दिस टाइम। The external forms of contentment are being described. They are 5 from the abstinence of 5 objects of senses. अच्छा, ये सेंटेंस पढ़ के तो ऐसा लगता है कि 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस से एब्सटेन करना, यानी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सूंघो, बुरा मत टच करो। हाँ, ऐसा होगा, है ना? एक बार मैम, पढ़ने को तो ऐसा लगता है। एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता दूर रहना, टू है? अच्छा, एब्सटेन दूर. फ्रॉम, टू रिफ्रेन फ्रॉम, टू नॉट गो नियर, ठीक है. Fires टू नॉट बी दूर रहो। अटैच। हाँ, चटके वैसा। इसलिए तो वैराग्य आया ना आगे। हम्म. ठीक है, इसको पढ़ के तो एक बार तो ऐसा लगता है, बट हम्म. ओवरऑल पढ़ के ये तो समझ में आ गया, इट इज नॉट ओनली दैट। हम्म. ठीक है, आगे चलो। These 5 belong to those who have vairagya, but are nevertheless content in considering the non-spirit. Wise, हाँ, ये क्या मतलब हुआ कि nevertheless these content. abstinences are related to वैराग्य प्रैक्टिस। हाँ, वैराग्य में अभी तक हमारे को कैसे समझ में आया है कि नॉन अटैचमेंट. हाँ, नॉन अटैचमेंट, यानी जो भी कुछ ऐसे लालच वालच आता है, इंडल्ज करने का मन करता है, कोई अच्छा लगता है उसके अंदर जानते ज्यादा, या वैर लगता है तो उससे दूर रहने का, ये वैराग्य है। तो ये उससे रिलेटेड है कि हम, अभी मालूम है कि अभी मीठा खाना अच्छा नहीं है इतना, तो हम वैराग्य भाव रखते हैं कि शादी में भी जाके एक रसगुल्ला खाया, उसके बाद में नहीं खाया। ठीक है? तो ये इस प्रकार की जो एक्सटर्नल तुष्टियां हैं, वो जो लोग वैराग्य प्रैक्टिस करने के लिए लेते हैं उनको अनुभव होती है। इतनी बात समझ में आ गई? करेक्ट? लेकिन ये बात एक क्या लिखी है, नेवरदलेस कंटेंट इन कंसिडरिंग द नॉन स्पिरिट, दैट इज नॉन स्पिरिट यानी नेचर, विल, इंटेलिजेंस, आई प्रिंसिपल एंड द रेस्ट ऑफ एंड द रेस्ट एज द स्पिरिट। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है शायद, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं योग की प्रैक्टिस करने वाले जो प्रकृति को ही अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। दे डोंट कंसिडर पुरुष एज एनीथिंग, कि पुरुष जैसी कोई चीज की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ है कि ये प्रकृति ही है।
समझे? तो ये वही कहा है कि जो लोग वैराग्य तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ये जो चेंजफुल है वही श्रेष्ठतम है, हाईएस्ट वही है। ऐसे लोग जब वैराग्य की प्रैक्टिस करते हैं तो अक्सर वो इस प्रकार की तुष्टि में फंस जाते हैं। ये उन्होंने बैकग्राउंड सेट किया है। ठीक है, ये वाक्य समझ में आया? चलो तो आगे पढ़ो। The feeling of satisfaction arising from this is called external, because lacking the knowledge of the spirit, they undertake efforts based on the knowledge of the non-spirit. अभी ठीक से समझ में आया एक्सटर्नल बात? रीड दैट सेंटेंस अगेन इफ नॉट। Yeah, वापस. The feeling of the satisfaction arising from this is called external, because lacking the knowledge of the spirit, they undertake efforts based on the knowledge of the non-spirit. मतलब ये समझा? नहीं जानते है इसलिए ना? अपन उसको, हाँ, पता ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है। हाँ, तो कंटेनमेंट मतलब वहां पे ही वो ये हो जाता है। प्रकृति में ही वो लोग कंटेंटेड होंगे। यस तो यस, वो लोग समझा। कुछ भी वैराग्य कर लें, एफर्ट आगे नहीं पहुंच ही डालते। नहीं पाएंगे। वो प्रकृति में ही कंटेंटेड रहेंगे और यही उनके लिए तुष्टि बन जाता है। हाँ मैम, 1 मिनट पॉज करो। श्योर। ओके, लेट्स रीड अहेड। These forms of contentment appear only when there is vairagya. Therefore, these forms of vairagya are also are considered fivefold, as the cause of vairagya are five. Therefore, these contentments are also five. Abstinence from the objects of the senses is vairagya, and vairagya is the absence of attachment. These five abstinence arise from the perception of defects in the process of five sense enjoyments involving, as it does, the trouble of earning, saving, wasting, pleasure, and violence involved in killing, etc. ये 5 समझ में? फर्स्ट इज अर्निंग, ट्रबल ऑफ अर्निंग, देन सेविंग, थर्ड वेस्टिंग, फोर्थ प्लेजर, एंड फिफ्थ वायलेंस इन्वॉल्व इन किलिंग। ये 5 एक्सटर्नल तुष्टि है। अच्छा। एंड नन ऑफ दिस कैन हैपन विदाउट, वो जो पीछे बैकग्राउंड बिल्ड किया है वो इसके लिए, नन ऑफ दिस कैन हैपन विदाउट सेंस एंजॉयमेंट। ये सारा सब सेंस एंजॉयमेंट के लिए होता है, यस। राइट? सेकेंडली, all sense enjoyment involves attachment, and all attachment is absence of vairagya, and it happens because of that kind of perception. राग का परसेप्शन है, द्वेष का परसेप्शन है, तभी ये सेंस एंजॉयमेंट में हम इंडल्ज करते हैं। और ये सारा सब प्रकृति का खेल है। ऊपर ऊपर जाके कनेक्ट हो गया एक्सटर्नल से? यस। तो ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा वापस से, एक बार दो बार पढ़ोगे तो। लेकिन ये जो 5 हैं, ट्रबल ऑफ अर्निंग, सेविंग, वेस्टिंग, प्लेजर एंड वायलेंस इन्वॉल्व्ड इन किलिंग, these are the 5 external तुष्टिस। अर्निंग में तुष्टि होती है, सेविंग में भी तुष्टि है, वेस्टिंग में भी तुष्टि होती है, प्लेजर में भी तुष्टि होती है, और किलिंग में भी तुष्टि होती है। बिना तुष्टि के ये काम कोई करता नहीं है, जो ये करता है उसको तुष्टि होती है उसकी। ठीक है, चल।
These five abstinence arise from the perception of defects in the process of sense enjoyment. हाँ वो तो वापस पढ़ रही हूँ. हाँ चलेगा, आप पढ़ ले, नो प्रॉब्लम. Self enjoyments involving as it does the trouble of earning, saving, wasting, pleasure, and violence in violence involved in killing, etc. The means of earning wealth are by service, under another, etc. And they cause pain to the servants as mentioned in the verse below. पहला एग्जाम्पल अर्निंग का लिया है कि हाँ. जॉब करके, सर्विस करके. हम्म तो वो एक एग्जाम्पल देके बताया. आगे चलो. Which wise is one could ever get into the service of another when one thinks of the pain caused by the insults suffered at the hand of the terrible wardens armed with sticks and employed by a haughty and wicked master. पढ़ ले नेक्स्ट पैरा, फिर मैं बताऊंगी. Similar is the case which other means of acquiring wealth also. The content arising from abstinence from the object of the sense because they cause pain is called para. पार. पार. Para. वो डैश है ना ए के ऊपर. हाँ, दैट मीन्स इट्स para. नॉट अ, इट इज आ. हाँ, para. पार. पार. Again, जैसे हाँ, द para. कंटेंटमेंट exist sorry arising from abstinence from the objects of the senses because they cause pain is called par. अभी अर्निंग आदमी क्यों करता है? सेंस एंजॉयमेंट के लिए. खाना पीना, घर बार बनाना, सारा एंजॉयमेंट के लिए ही है. क्योंकि ऐसा हमारी पुरानी उपनिषदों में कहावत है कि जिसने चांच दी है तो वो चुग्गा भी देगा. एक सड़क के किनारे बैठा हुआ आदमी भी, उसको भी कोई ना कोई खाना कुछ दे जाता है. जीवन है तो उस जीवन को संभालने का काम क्रिएटर का है. तो हम अर्निंग किस लिए करते हैं? खाली पेट भर के जिंदा रहने के लिए नहीं. अब जैसे मैंने बताया कि वो जो एक मालसर में जो गुरुजी हैं रामदास जी, वो दिन में खाली आधा लीटर दूध पी के रहते हैं और 15 साल हो गए ऐसे. कभी खाया तो एक फ्रूट खाया. 365 दिन 15 साल से. यानी कि जीव और सारे दिन साधना में लगे होते हैं. हमारा मैम, मेन उद्देश्य साधना ही होना चाहिए ना. हाँ, मेन उद्देश्य उत्थान ही होना चाहिए ना. यस. तो उसके लिए तो खर्चा कुछ भी नहीं है, बहुत मिनिमल है. जो कि यदि तुम सही उद्देश्य में अपने आप को लगा दो तो समाज देखभाल करता है. कहीं ना कहीं से तकलीफ तो तुम्हारे को होगी यदि तुम उससे डिपेंडेंट हो. ये सोच के यदि तुम उसमें जाते हो तो नहीं मिलेगा. लेकिन सचमुच वो ही तुम्हारा उद्देश्य है तो कहीं ना कहीं से पूर्ति होएगी ही. वो इतना विश्वास के साथ में सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं और वो पूरा होता है. मैम, ये जो है ना सदगुरु सदगुरु जो है वो और श्री श्री रविशंकर महाराज और ये सब, वो लोग तो क्या खाते पता है क्या? मैंने ऐसा सुना है. और रविशंकर महाराज जो है ना, वो तो एक वाटी में दही और राइस ही खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते, वो सिर्फ वही खाते. और सदगुरु जो है वो एक केला और दूध,
बस उसके ऊपर ही जी रहे हैं। हाँ, कैसे चल और उनके पास में माया की कमी है, पापा। वैराग्य है, इसलिए ये सब है। हाँ, और ये भी सुना है कि वो अगर कहीं पे मतलब ट्रैवलिंग करते हैं और बहुत बड़ी 5 स्टार होटल वगैरह कहीं पे भी जाते हैं, तो वो लोग बेड वेड वैसा कुछ यूज नहीं करते, वो लोग अपनी चादर लेके जाते हैं और जमीन पे सोते हैं। वैसा वैराग्य होना चाहिए। और हम लोग तो होटल में जाते हैं, देखते हैं पहले रूम और बेड बराबर है क्या। ना, कैसा जीवन जीते हैं। हम्म। तो ये दुनिया ही अलग दुनिया है, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक उसको हम जानेंगे नहीं। और ट्रांजिशन पीरियड में तो प्रॉब्लम होगी ही, आधा टाइम इधर आधा टाइम उधर, आधा दिमाग इधर आधा दिमाग उधर, तो प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहली जो बाहरी तुष्टि की बात की है, एक्सटर्नल कंटेंटमेंट, वो क्या कहा है? द कंटेंटमेंट अराइजिंग फ्रॉम द एब्स्टिनेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस बिकॉज दे कॉज पेन। कि सेंसेस के लिए जो भी कुछ अक्वायर किया जाता है, उसको अक्वायरिंग करने में पेन जो होता है, ये जो कि जाने दे, मैं थोड़े कम पैसे में ही चला लेगी, मेरे को ये वाला जॉब नहीं करना है, इधर वाले जो ये जो मास्टर है वो बहुत इंसल्ट करता है, कौन इतनी इंसल्ट सहेगा उसकी, छोड़ देते हैं, कम वाला जॉब ये ठीक है, यहाँ कोई इंसल्ट इंसल्ट नहीं होता, यहाँ मेरी इज्जत होती है, अपन कम में जी लेंगे। ये जो तुष्टि है, हम्म, इसको पार तुष्टि बोलते हैं। ये पहली वाली तुष्टि है कि अर्निंग ज्यादा इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस अर्निंग के अंदर तकलीफ हो रही है। सही है। आगे बात ध्यान में। हम्म। अभी तुमने जो एग्जाम्पल दिए जिन दो लोगों के, उनके पास में तो कितनी बड़ी आश्रम है, हाँ ना। कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, चीजों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जो भी किसी को हेल्प करने के लिए भी जरूरत हो तो वो आ ही जाता है और मिल ही जाता है ना? वो इसलिए नहीं कि इन सब, अब वो उनको क्या चिंता है, उनको क्या करने की जरूरत है, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं? वैराग्य भाव से कर रहे हैं लोगों का और अच्छा। पर सेवा से कर रहे हैं। हम्म। और वो उनकी पर सेवा में जो दृढ़ता है, जो उनका निश्चय है, वो इतना स्ट्रांग है कि उनको कभी भी ये नहीं लगता कि ये सब करके मेरा क्या। उसके बारे में कभी नहीं सोच। खुद के बारे में सोच लिया कि मेरा तो वही है, और वहां से उनका मन हटता नहीं है। जब तक तुम अपने आप को, अपने पुरुष को, अपने हाईएस्ट सेल्फ को सबमिट नहीं कर दो, सरेंडर नहीं कर दो, तब तक तुम ये नहीं कर सकते, और ये करते हुए निश्चिंत नहीं रह सकते। वो बहुत बड़ी बात है। हम्म। कर लिया, बट करने के बाद क्या, निश्चिंत रहना बहुत बड़ी बात है। कोई सरेंडर किया तो निश्चिंत हो जाओगे, लेकिन हम सरेंडर ही नहीं करते, हमारा सरेंडर लिमिटेड होता है, हाँ। इसलिए हमारे तो एक्सटर्नल तुष्टि भी नहीं होती है। चलो ठीक है, एक्सटर्नल तुष्टि ही होती है बल्कि। तो ये 5, ये सेंसेस वाली तुष्टि समझ में आ गई हाँ मैम। कि सेंसेस को सेटिस्फाई करना, हम इसलिए नहीं सेटिस्फाई करते, क्यों? क्योंकि मेरे पास में ज्यादा कमाने में मेरे को इंसल्ट होएगा, इसलिए ठीक है, मैं काजू बादाम नहीं खाऊंगी, मेरे को सींग चलेगी। वैराग्य हो गया, कहने को सेंसरी वैराग्य हुआ, लेकिन क्या सच में सेंसरी वैराग्य है ये तुष्टि है। क्योंकि ये तुमने जो वैराग्य किया है वो, उसके पीछे कमाई रीजन। करने में जो इंसल्ट हो रही है, जो धक्के खाने पड़ते हैं,
उस पेन के अंदर तुष्टि है। यदि ये एक लॉजिक समझ में आ गया तो बाकी सब इसी प्रकार के लॉजिक है, तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ ठीक है, गया। चलो आगे चलो। Again, the protection of the wealth thus acquired being destroyed by the agent of the kings, thieves, fire, and flood, etc., involves great pain and misery. The contentment that arises from the abstinence from the object of senses due to such consideration is the second variety called सुपारम। suparam. अभी समझ में आ गया ये इजीली कि मैम, समझा। हम कमाते हैं, टैक्स लेके जाते हैं, फिर उसको हम बड़बड़ करते हैं, ये ऐसे ही लगा मुझे अभी। बिल्कुल, हम क्यों नहीं ज्यादा उसको कमाना चाहते, क्योंकि ज्यादा धन तो होएगा, टैक्स चोर देना आएगा, पड़ेगा। टैक्स देना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, वो सारा सब झंझट कौन करेगा, जाने देना, नहीं कमाते। हाँ, इतना तो बस हो ऐसे करके गया। तुष्टि किया है। अब नहीं कमाएंगे तो उतना सेंस सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, चलेगा हमारे को, इसमें तुष्टि कर लेंगे। कैसा उल्टा दिमाग चलता है। तो कहने को हम वैराग्य कर रहे हैं कि नहीं, मेरे को मूंगफली अच्छी लगती है, मेरे को काजू बादाम नहीं अच्छी। क्यों अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि वो वो ज्यादा करना। पैसा होगा तो उसको कम। हाँ, आगे चलो। Again, the constant thought that the wealth acquired with great pain wastes away when enjoyed leads to the abstinence from objects of the senses. मैम, करना तो क्या करें? The contentment arising from such feeling is the third kind of contentment called para पार। paravara. Paravara. हाँ, तो ये कंटेंटमेंट क्या है कि इतना सब कमा के क्या फायदा, ये दूसरे लोग सब खर्च कर दे रहे हैं। हाँ, परिवार वाले सारा कमाया हुआ तो खर्चा हो जा रहा है, वेस्ट जा रहा है ये सब। नहीं कमाते। मैम, फिर ये ऐसा डोंकी की तरह नहीं हो गया? आंख बंद करके चलो। हाँ, When डू। your purpose is higher, it is all different. क्योंकि हमारा पर्पस ये नेचर के अंदर है, इसीलिए हम लोग को तकलीफ है। और हमारी लिटरली तुष्टि भी होती वर्किंग है तो ऐसी, ऑन द ब्लेड, आई मीन शार्पनेस ऑफ द ब्लेड, मतलब ये करूँ वो करूँ, इसी में हमारा मतलब। क्योंकि हायर पर्पस फिक्स नहीं है। यस, लार्जर वो गोल पर्पस हैज टू बी क्लियर। डेस्टिनेशन मिल गया तो बाय हुक और क्रुक वी हैव टू रीच दैट, देन वो सोच के एवरीथिंग विल आगे जस्ट है। स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। हाँ, और वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और वो मतलब वो क्योंकि वी आर थॉट्स भी नॉट नहीं यूजिंग आते। ब्रेन। हाँ, अपना हाँ, दिमाग बिकॉज यहाँ वहां लगाएंगे ही नहीं कि मेरे को हाँ सिर्फ उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है अभी। बिल्कुल, फिर इधर उधर भटकेगा ही नहीं मन। हाँ, वही तो हायर पर्पस इसलिए थकान बहुत इंपॉर्टेंट है। थकान भी नहीं लगेगी, मतलब हाँ, बिल्कुल, थकान सोचना वही मैं नहीं ही, बता लगेगी, रही हूँ ना, बस सोचने सोचना में वो कभी ही। साधना थकते करके नहीं, थकते सोचने नहीं में है। थक। हाँ, और ज्यादा एनर्जी मिलती है। हाँ, वो शाम रात को 3 बजे उठ के जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 1600 जाप करते हैं रोज, या 16,000 करते हैं, पता नहीं। हाँ, 16,000 करते हैं। 16,000 होगा, 1600 तो मैं ही तो कर रात को दूंगी। 3 बजे से लेके दिन के 4 बजे तक लगातार वो जाप करते हैं। एंड ही इज सो फुल ऑफ एनर्जी इफ यू मैम, वो मीट तो हिम एट 4, वाइब्रेशन है ना, 4:30। प्राणायाम के तरह ही हो जाएगा, वो जाप बिल्कुल में ही प्राणायाम हो रहा है। आसान साधना थोड़ी है, लेकिन उद्देश्य क्लियर है, वो करना है। और इसलिए करना है क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी सब जगह फैलानी है। आगे चलो। By becoming addicted to the enjoyments of the sense objects, such as the second and the rest, साउंड sound and the rest, sorry, sound and the rest, the cravings for them also increases. They make चौरस lecherous person. वो क्या होता है मैम, lecherous treacherous person? person, miserable if Miserable objects if of, objects of enjoyments are not available. अभी समझा, treacherous, हाँ, सॉरी lecherous। lecherous.
यानी वो जिसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। The contentment that arises from the abstinence of the objects of the senses, such as thoughts, is the fourth type known as anu अनुत्तम अम्ब, anuttamambha. Anuttamambha. अनुत्तम अम्ब, इसलिए अनुत्तम, Anuttamambha. अनुत्तम समझा, उत्तम जो नहीं Anuttam. है है ना, Anuttam. वो वाला अम्ब। Amba. कि इसमें क्या बोला है, बाय बिकमिंग एडिक्टेड टू एंजॉयमेंट्स ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट्स। रसगुल्ला अच्छा लगता है तो रसगुल्ला 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 कहीं से भी कैसे भी करके लाने का है, खाने का है। फिर एंड अभी जैसे साउंड एंड द रेस्ट, यानी वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारे तन्मात्रा की सेटिस्फैक्शन, यानी कि वो सारे पांचों सेंसेस की सेटिस्फैक्शन, एंड द क्रेविंग फॉर देम ऑल्सो इंक्रीजेस। दे मेक a lecherous person miserable if objects of enjoyments are not available. इंद्रियास की बात की है क्या क्रेविंग से? हाँ, जो भी क्रेविंग हो, किसी भी प्रकार की क्रेविंग हो, खाने पीने की, सुनने की, एनी ऑफ द सेंसेस के लिए जो क्रेविंग है, तो उसको चाहे जितना मिल जाए वो हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रहेगा। The contentment that arises from the abstinence of the object of senses from such thoughts, यानी जिसके मन में ये बात घर कर गई कि कोई भी जो क्रेविंग है उसको सेटिस्फाई करने से वो क्रेविंग खाली बढ़ेगी ही, और इसलिए मैं उस सेंस को सेटिस्फाई नहीं करूंगा, और मतलब इसलिए वो उसके way लिए you मैं should कुछ know काम to नहीं करूंगा, upwork. वो you और should ऐसे करके वो आदमी भूखा ही रहेगा। यानी कि पेट भरने को भी वो सेंसरी क्रेविंग को सेटिस्फैक्शन मानेगा। तो ऐसी सोच वाला व्यक्ति भी तुष्टि में है। इस तुष्टि को बोलते हैं अनुत्तम अम्ब, और ये उत्तम नहीं है, अनुत्तम है। हाँ, नाम से ही मालूम पड़ता है, यस। क्योंकि सेंसेस को उनका जो मिनिमल आहार है उसको जीवन यापन के लिए देना जरूरी है। लेकिन जो हम सेंसेस का गलत उपयोग करने लगते हैं, हमको जो जैसे टेस्ट, अलग अलग प्रकार की जो हमको टेस्ट दिए हैं वो बैलेंस डाइट लेने के लिए दिए हैं, हम उसका क्या उपयोग करते हैं, इंडल्जेंस में। तो वो जो सही उपयोग है उसके लिए भी नहीं उसको यूज करता, वहां पर भी उसको जब मार देता है तो ये तुष्टि की वजह से मारता है, वो एक्चुअली सेंस का वैराग्य नहीं है। अभी समझा कैसे ये पांचों तुष्टियां वैराग्य करने वालों को होती है, क्योंकि वो वैराग्य एक्चुअल सेंस वाला वैराग्य नहीं कर रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य वाला वैराग्य नहीं हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। ये उसका अल्टीरियर मोटिव दूसरा है। तो अपन जब बीसीटी करके जो उसका कारण मालूम करते हैं ना, तो ये कारण बता रहे हैं। आगे चलो। the contentment that comes from the abstinence of sense objects arising from the perception of defects of violence, etc., caused by such thoughts, as it is not possible to have the enjoyment of the object of the senses without the process of killing animals, etc., is the fifth kind of contentment called uttamambha. उसको लगता है मैं बहुत उत्तम काम कर रहा हूं। मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं नॉनवेज इसलिए नहीं खाता क्योंकि जानवर मारे जाते हैं। मैं कपास नहीं पहनता, क्यों, क्योंकि उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं। मैं कागज नहीं वापरता, क्यों, क्योंकि उसके लिए झाड़ मारे जाते हैं। यानी हर चीज के अंदर उसको ये दिखाई देता है कि कैसे किलिंग होता है। अब मेरे घर में पेट है, लेकिन उस पेट को वो मेरी सिस्टर ने पाल रखा है, और उसको वो बिल्ली है तो उसको वो मांस लाके देती है,
और उससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हिंसा कर रही है, हमारे घर में हिंसा हो रही है, मेरे घर वाले लोग हिंसा कर रहे हैं, इसलिए पेट नहीं रखने का, भले वो फिर भूखा मरे वो। और वो पेट ऐसे ही बन गई थी, उनके घर में आ गई थी। बिल्लियां हो जाती है ना प्यारी। हम्म, तो ये उत्तम अंब है। बात तो अच्छी है ना कि भी हिंसा नहीं करनी है, इसमें किलिंग हो रही है इसलिए ये काम नहीं करने। लेकिन जो जीवन यापन के लिए जितना जरूरी है, अभी ये भी संत लोग हैं दूध पी रहे हैं, तो कह बछड़े को दूध नहीं मिल रहा, मैं उसका गाय का दूध मैं पी रहा हूं, तो वो नहीं पिएंगे उसके ऊपर, तो वो उत्तम अंब हो जाएगा। क्योंकि जीवन जीने के लिए शरीर पंच महाभूत से बना है, तो उसको पंच महाभूत थोड़ा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। और शरीर भी तो गिफ्ट ऑफ गॉड है। That is also our duty to take care of it. हाँ, तो यू डू इट विथ अ सेंस ऑफ ड्यूटी। तो इस सारे तुष्टियों के अंदर एक सीधा सा सॉल्यूशन मेरे को जो दिखता है वो है, ये सब चीजें करो, लेकिन तुष्टि की वजह से वैराग्य मत करो। जो भी कुछ तुम वैराग्य करते हो उसको सेंस ऑफ ड्यूटी की तरह करो। तो वापस जाके ब्रह्मचर्य को सही से समझो और अपने आप को टेस्ट करो कि खाली मैं सेंस वैराग्य कर रहे हूं या सेंसेस को सही ढंग से ड्यूटीफुली यूज कर रहे हो। यदि तुम ड्यूटी के साथ सेंसेस को यूज करोगे तो इस प्रकार का तुष्टि यदि कहीं से कहीं क्रीप होके अंदर आ रही होगी तो तुम उसको पकड़ पाओगे, तुम उसको पहचान पाओगे और उसके ऊपर काम करके उस तुष्टि को भी निकाल दोगे। तब तुम्हारा वैराग्य सही मायने में हो रहा है कि नहीं मालूम पड़ेगा, पहचान आ जाएगा। कॉन्फिडेंस भी लगता है एंड सेल्फ कंट्रोल, मतलब इसमें ये सब आ जाएगा एवरीथिंग। मतलब हिडन सम थिंग्स आर व्हिच आई एम नॉट एबल टू एक्सपेल आउट, बट वो भी सीख जाएंगे फिर। यू तो इस बार लाइक का होमवर्क के अंदर ऐसा करो कि जो भी चीज का वैराग्य है वो देखो कि सच में वैराग्य है या इस प्रकार का हिडन कुछ एजेंडा है, तुष्टि वाला। ठीक है। हम्म। और लास्ट टाइम की तरह चाहिए तो यो भी कंटिन्यू करो और देखो वो चार या ये पांच में से कौन सी तुष्टि तुम्हारे को अपने आप में दिखती है। दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है। पता नहीं जो भी आंसर होगा, आंसर तो मिलेगा एटलीस्ट। हाँ, वॉच योर सेल्फ। हाँ, बिकॉज आई एक दो ऐसा नजर में तो आ रही है, लेकिन वो कर रही, वो सही है गलत है पता नहीं, तुष्टि की उसका वजह से कर कारण रही क्या वो है भी। वो अपने को हाँ, पहचानना वो है। अभी ढूंढना पड़ेगा। सर, और ढूंढने के वो लिए सरफेस वीसीटी करना जरूरी है। फर्स्ट लेवल का वीसीटी करोगे तो तुम डेफिनेटली कारण तक पहुंच पाओगे। वो जो अपना लेवल 2 का जो वीसीटी होता है वो सारा इसके ऊपर है। जो ऊपर ऊपर दिखता है कि ये वैराग्य तो है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं ये मेरा वैराग्य सही है क्या, इसके पीछे कोई तुष्टि है क्या मुझे पता नहीं, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ, प्यार करती हूँ। है कि नहीं? ओके। मेरे को बहुत मजा आ रहा है आज। लास्ट टाइम भी जब अपन ने किया था आई रिमेम्बर इट वॉज द सेम वे। इसका यानी इसका ये जब समझ में आने लगता है ना कि ये जो ऊपर का जो वैराग्य है उसके नीचे क्या क्या हो सकता है। ओ माय गॉड, ये अपना माइंड कितना चालू है, चालाक है।
मतलब और- दूसरे लोगों को तो इतना ही पता है कि देर इज अ वैराग्य। हाँ ओके, जिसने ये अब नहीं जाना है उसको उतना ही कि इतना ही मुझे है। मालूम है मैं क्यों बट छोड़ वैराग्य फॉलो हाँ, कर रही। बट ओके, आई अभी नो पता व्हाई आई एम चलता डूइंग है दैट। कि अच्छा ये दिस इज हाँ ऑल्सो ये कॉल्ड है मेन वैराग्य। ओनली कारण, आई, हाँ, इसलिए ओनली द वैराग्य है। पर्सन हु इज डूइंग तो वो नोज व्हाई ही इज वैराग्य डूइंग। नहीं है, असल में तुष्टि है। हाँ, वैराग्यों को ही ऐसी तुष्टियां होती है। वो वहां पे कंटेनमेंट आ जाता है उन लोगों को। हाँ कि इतना ही वैराग्य है। फिर वो सुपरफिशियल है मालूम पड़ जाता है, हाँ। और इसलिए वो टिकता नहीं है, क्योंकि कारण कुछ और होता है, वो हम्म। वैराग्य नहीं होता है। दैट इज आल्सो समवे कहीं ना कहीं सप्रेसिंग है ना मैम। हम्म, अच्छा है, चलो। चलो। डायबिटीज है, अभी वो कल टेस्ट करने जाना है, इसलिए 2 दिन पहले 3 दिन पहले शुगर वुगर खाना बंद कर दिया, ताकि उसमें रिजल्ट में दिखे नहीं। तो वो असल में यू आर नॉट लिविंग शुगर, है ना, वो तुष्टि है, तो उस पेट पे पेनक्रियास, बैठते हैं। पेनक्रियास को पता है ना कि अभी रिजल्ट क्या देना है क्या नहीं, ना। फिर वो क्या करेगा, रिजल्ट आने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद अटैक करेगा। हम्म, ऐसा। तो अपन जो चल। एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हैं वो सारी तुष्टियां हैं। हम्म। ठीक है, तो पहचान लो। ठीक है, व्हाट आर वी रियली अंडर द स्किन इज द होमवर्क टुडे। इसको तो अभी से टेंशन हो गया लगता है। हाँ, दो तीन मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को अभी पीछे पीछे जाना पड़ेगा कि व्हाई आई एम हाँ डूइंग दैट। करेक्ट, ऐसा मुझे आई अपने वांट टू अंदर लुक थोड़ा इट। और डीपली झांकेंगे, and it is safe. You know that even at level 2 you can do your VCTs and change the story, the third level. ठीक है, जो भी कुछ समझ में आता है चेंज करना है, VCT कर डालना, और फिर शेयरिंग भी करना। ठीक है, हम्म। चलो। चलो, see you थैंक next Monday. I hope others will also join in. यू।